Hello friends, today we will do chapter number 1, A Triumph of Surgery. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी और उसे देखकर मुझे सदमा पहुंचा. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. वह बहुत मोटा हो चुका था, फूले हुए कबाब की तरह, जिसके 4 कानों पर 4 टांगें दिखाई देती थी. उसकी आंखें लाल और गठियाग्रस्त थी, जो कि सामने टकटकी बांधे हुए सीधे देखती थी और उसके जबड़ों के बीच में से उसकी जीभ बाहर लपलपा रही थी. Mrs. Pemfrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. श्रीमती पेम्फ्रे ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया. श्रीमान हीरियट, यह कितना लापरवाह रहा है. He seemed to have no energy. ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मैंने सोचा यह कुपोषण से पीड़ित रहा होगा, इसलिए मैं इसे भोजन के बीच के समय में थोड़ी थोड़ी अन्य चीज़ें जैसे जौ का रस, बियर और कार्ड मछली के जिगर का तेल देती रही हूँ और रात को वह ठीक ढंग से सो सके 1 कटोरा हॉर्लिक्स देती रही हूँ. वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं. And did you cut down on the sweet things as I told you? और क्या आपने मिठाइयों में कमी की है जैसे मैंने आपको बताया था? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. और मैंने थोड़ी सी कम की थी, लेकिन वह इतना कमज़ोर हो गया कि मुझे पछताना पड़ा. He does love cream cakes and chocolate so I can't bear to refuse him. उसे क्रीम वाले केक और चॉकलेट इतने अच्छे लगते हैं कि मैं उसे न देने को सहन नहीं कर सकती. I looked down again at the little dog. That was the trouble. मैंने पुनः नीचे छोटे कुत्ते की ओर देखा. वही परेशान थी. Trickies would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pemfrey hadn't mentioned. Tricky का एकमात्र दोष लालच था. उसने भोजन के लिए कभी भी मना नहीं किया था. वह दिन में या रात को किसी भी कभी भी समय भोजन खा लिया करता था और मैं उन बातों को जानकर हैरान हुआ जिनके बारे में श्रीमती पेम्फ्रे ने मुझे नहीं बताया था. Are you giving him plenty of exercises? क्या आप
उससे काफ़ी व्यायाम कराती हो? Well, he has little walks with me, as you can see. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है. The gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. लेकिन हमारा हाकिम नाम का माली कटिवात रोग से पीड़ित हो गया है, इसलिए आजकल छल्ला फेंकने का व्यायाम नहीं हो पा रहा है. I tried to sound serve. Now I really mean this. मैंने कठोर होने का प्रयास किया. अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. यदि इसका भोजन कम नहीं करोगे और इसे अधिक व्यायाम नहीं करवाती, तो यह अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना हृदय कठोर करना पड़ेगा और उसे आहार देने में बहुत सख्ती बरतनी होगी. Mrs. Pemfrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. श्रीमती पेम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा. श्रीमान हैरियट, मैं ऐसा ही करूंगी. मुझे यकीन है कि आप सही हैं, लेकिन यह बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वह सड़क पर सर नीचा करके इस प्रकार चलने लगी जैसे कि नई नियमावली को अभी से ही लागू कर देगी. I watched their progress with growing concern. मैंने बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ उसकी वृद्धि को देखा. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pemfrey. Tricky अपने छोटे से मोटे ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ सा चला रहा था. इस प्रकार के कोटों की उसके पास एक पूरी अलमारी थी. सर्दी के ऋतु के लिए और वर्षा ऋतु के लिए एक बरसाती थी. वह संघर्ष करता हुआ चल रहा था और अपने सजावटी वस्त्रों के बोझ से झुका जा रहा था. मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही उसके बारे में श्रीमती पेम्फ्रे से कोई समाचार सुनूंगा. The accepted call came within a few days. Mrs. Pemfrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time laying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. जिस निमंत्रण का मुझे इंतजार था, कुछ ही दिनों में मुझे वह बुलावा आ गया. श्रीमती पेम्फ्रे दुखी थी. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. उसने अपना मनपसंद भोजन भी छोड़ दिया था और साथ ही वह बार बार उल्टी कर रहा था. वह सारा समय कंबल पर लेटा रहता और हाँफता रहता था. वह सैर करने के लिए नहीं जाना चाहता था और कुछ भी करना नहीं चाहता था.
I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने अपनी योजनाएं पहले से ही बना रखी थी। इसके इलाज को एक ही रास्ता था और वह था ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाना। मैंने सुझाव दिया कि 2 सप्ताह के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया जाना चाहिए और निगरानी में रखा जाना चाहिए। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. बेचारी महिला बेहोश सी हो गई। उसे यकीन था कि यदि उसने कुत्ते उसे प्रतिदिन नहीं देखा तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pemfrey's wailings, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. लेकिन मैंने कठोर रुख रखा। ट्रिकी बहुत बीमार था और निसंदेह उसे बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। मैंने यही उचित समझा कि उसे बिना किसी देरी के वहां से ले जाया जाए। मैं छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर अपनी कार की ओर बढ़ा और श्रीमती पेम्फ्रे रोती हुई मेरे पीछे आ रही थी। To get explanation of page number 3, see the next video. Thank you.